Good morning everyone. Welcome to our channel RDS Group class. As you know, yesterday we have taken revision of chapter 8. So let us move to our next chapter, chapter 9. What is the chapter 9? Degree of comparison. Your chapter 9 is degree of comparison. So first we study the sentence. What is given here? The hippopotamus is a large animal. The hippopotamus is a large animal. Second, an elephant is larger than hippopotamus. Okay, so ये जो हिप्पोपोटामस है वो एक लार्ज एनिमल होता है, लेकिन अब मैंने कह दिया नाउ आई एम कंपेयरिंग समथिंग बिकॉज इन डिग्री ऑफ कंपेरिजन वी कंपेयर वन थिंग टू अदर. सो हिप्पोपोटामस इज़ अ लार्ज एनिमल बट एलिफेंट इज़ लार्जर देन हिप्पोपोटामस. एलिफेंट जो होता है वो इससे लार्ज होता है. सो अब हम उसके लिए क्या लिखेंगे? एन एलिफेंट इज़ लार्जर देन द हिप्पोपोटामस. अब वेल इन दोनों से बड़ी होती, सबसे बड़ी होती, सो वी कैन से द वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल. So here you can see how will we change the degree of comparison and what word do we use for comparison? So it is adjective. जो adjective होता है उसी को हम compare करते हैं. So जब हम first 3 parts में इसको हम करते हैं कंपेयर, जो फर्स्ट होता है हमारा जैसे कि यू हैव सीन लार्ज ही रहेगा. सेकेंड जब हमने उसको कंपेयर किया तो वो क्या हो गया? लार्जर हो गया. आफ्टर दैट लार्जेस्ट. ओके, फर्स्ट डिग्री जो होती है हमारी पॉजिटिव लार्ज, सेकेंड लार्जर एंड थर्ड वन इज़ लार्जेस्ट. In the above 3 sentences we are comparing the sizes of a hippopotamus, an elephant and a whale. So in the degree of comparison we compare one thing to other. Okay, and there are 3 types of degree of comparison: positive, comparative and superlative. So first one is positive, second one is comparative and third one is superlative. In the above 3 sentences we are yes, I have already told you. So now you all have seen it here. Now we will move to our notebook work. Okay, so first we mention the date 1/10/2020. After that, degree of comparison used to compare things. After that, underline degree of comparison used to compare things. Okay, chapter 9. Degree of comparison used to compare things. Chapter 9. Degree of comparison. Okay, so क्या होता है? Degree of comparison used to compare things. Now chapter 9. Chapter क्या है? Degree of comparison. Now listen what is degree of comparison. An adjective of quality. जो adjective of quality होता है, that means in adjective of quality we speak about the quality of a noun. हाँ, जो quality से related चीज़ें होती हैं that we use. So an adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. जब one noun को another noun से हम compare करते हैं तो ये क्या होती है? इनकी forms change हो जाती हैं. It will be changed. How it will be changed? So with another it is called the degree of comparison of an adjective. इसी को हम degree of comparison of an adjective बोलते हैं. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called the degree of comparison of an adjective. So okay, so now I will explain you how we will change the degree of comparison. First we have seen this pencil. अब ये पेंसिल देखिए इतनी बड़ी है, ठीक है. सो बिग, आपको ये बिग लग रही है, बिग है. ये इससे भी बिग है, तो जो इससे बिग होगी वो क्या हो गई? बिगर. और ये इन दोनों से बड़ी है. आप देख सकते हैं फर्स्ट यहाँ तक आई, सेकेंड यहाँ तक और थर्ड यहाँ तक. सो फर्स्ट हमारी क्या हो गई? बिग. सेकेंड क्या हो गई? बिगर. दैट मीन्स जब मैंने 2 चीज़ों को कंपेयर किया, सो कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है? व्हेन वी टॉक अबाउट द 2. सो ये बिगर हो गई, बट मैंने जब तीनों को कंपेयर किया तो ये क्या हो गई? थर्ड, बिगेस्ट हो गई. सो फर्स्ट इज़ नोन एज पॉजिटिव डिग्री, सेकेंड इज़ नोन एज कंपेरेटिव डिग्री एंड थर्ड वन इज़ नोन एज बिगेस्ट, दैट मीन्स सुपरलेटिव डिग्री. एंड वन थिंग आई विल क्लियर यू that I have drawn a simple pencil because I have no color here. Okay, so but you all will make it very clearly and also fill here color. आपको कलरफुल प्यारी सी पेंसिल बनानी है. ये सबसे छोटी बनेगी, आफ्टर दैट ये उससे बड़ी और फिर ये उससे बड़ी बनेगी. दैट इज़ क्लियर टू यू. इन दिस वे यू ऑल विल ड्रॉ द पेंसिल. एंड पेंसिल के ऊपर ये 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 पेंसिल,
फर्स्ट हमारी बिग है, उसके आगे आपको पॉजिटिव लिखना है, सेकेंड बिगर यू राइट कंपेरेटिव, थर्ड बिगेस्ट यू राइट सुपरलेटिव। देयर आर 3 एडजेक्टिव ऑफ कंपेरिजन। अब 3 एडजेक्टिव हैं कंपेरिजन के, कौन कौन से होते हैं जो मैंने अभी बताएं। सो फर्स्ट द पॉजिटिव डिग्री, द कंपेरेटिव डिग्री, द सुपरलेटिव डिग्री। क्लियर? फर्स्ट वन इज़ पॉजिटिव डिग्री। क्या है पॉजिटिव डिग्री? द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज टू रिफ़र टू वन ऑब्जेक्ट और person or place without making any comparison। जो द पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज टू रिफ़र टू वन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को जो है पॉजिटिव डिग्री इज़ यूज टू रिफ़र टू वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस विदाउट मेकिंग एनी कंपैरिजन। दैट मीन्स पॉजिटिव डिग्री में किसी चीज़ का किसी चीज़ से कंपैरिजन नहीं होता है, वो ओरिजिनल फॉर्म में होती है। पॉजिटिव डिग्री यूज एज अ ओरिजिनल फॉर्म, ओके, एंड इट्स टॉक अबाउट ओनली वन ऑब्जेक्ट, पर्सन और प्लेस, चाहे वो ऑब्जेक्ट हो चाहे प्लेस हो या पर्सन, बट इट टॉक्स ओनली अबाउट द वन, सिर्फ एक वन के बारे में बात करता है। इसके बाद शी हैज़ अ बिग हाउस, जैसे कि हमने सिंपल लैंग्वेज में कहा शी हैज़ अ बिग हाउस, उसका एक बड़ा हाउस है, सो बिग इज़ अ पॉजिटिव डिग्री। आफ्टर दैट कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है? कंपैरेटिव डिग्री, द कंपैरेटिव डिग्री रिफर्स टू अ ग्रेटर डिग्री ऑफ एडजेक्टिव एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव डिग्री। अगर हम कंपैरेटिव डिग्री को पॉजिटिव से कंपेयर करते हैं तो ये इससे बड़ी होती है, ठीक है। दैट मीन्स अब इसमें 2 चीज़ें, ये तो सिंगल बात कर रहे थे, अब यहाँ पे 2 चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। व्हेन वी कंपेयर वन थिंग टू अदर थिंग देन इट इज़ नोन एज कंपैरेटिव डिग्री। इट इज़ यूज टू कंपेयर 2 ऑब्जेक्ट, इसका यूज़ होता है 2 ऑब्जेक्ट, 2 पीपल या 2 प्लेस से इसको कंपेयर करने के लिए। जैसे मैंने कहा कुतुब मीनार इज़ ग्रेटर देन आगरा, आगरा से बड़ा है कुतुब मीनार। हाँ, मतलब ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ रियल में बड़ा है। सो इस तरह से मैंने कहा मैं आपसे बड़ी हूँ, तो हमारा आपका कंपैरिजन हो रहा है ना। सो आई एम बिगर देन यू, मैं आपसे बड़ी हूँ, सो इट इज़ कंपैरेटिव डिग्री। और फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे हमने सिर्फ बिग लिखा, शी हैज़ अ बिग हाउस, बट हियर वी विल राइट हर हाउस इज़ बिगर देन माई हाउस, उसका जो हाउस है वो मेरे हाउस से बड़ा है। आफ्टर दैट सुपरलेटिव डिग्री। द सुपरलेटिव डिग्री रिफर्स टू द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। सो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो ग्रेटेस्ट डिग्री होती है किसकी? सुपरलेटिव डिग्री इज़ द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की ग्रेटेस्ट डिग्री होती है। इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 ऑब्जेक्ट, और इसका यूज़ होता है 2 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा में कंपैरिजन होता है, और ये सबसे बड़ी डिग्री होती है, जो सब में सबसे बड़ा होगा दैट इज़ यूज फॉर सुपरलेटिव डिग्री। ओके, इट इज़ यूज टू कंपेयर मोर देन 2 थिंग्स, ऑब्जेक्ट, पीपल, प्लेसेस, ठीक है। 2 से ज़्यादा को कंपेयर करता है, हाँ, ये 2 से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को, पीपल को, प्लेसेस को कंपेयर करता है। हिज हाउस इज़ द बिगेस्ट ऑफ ऑल, उसका जो घर है वो सब में से सबसे बड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट वी कैन सी हेयर नोट वी मेक कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बाय एडिंग ER एंड EST। क्या होता है? ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हो गई, ये हमारी कंपैरेटिव डिग्री हो गई, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री होगी। तो पॉजिटिव में सपोज आपने लिखा पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। सपोज आपने पॉजिटिव में लिखा लार्ज, ठीक है, क्या लिखा? लार्ज। सो वी मेक कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जब इसका हम बनाते हैं तो क्या ऐड कर देते हैं? ER, दैट मीन्स क्या हो जाएगा? ठीक है, लार्जर। ओके, और जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो EST ऐड कर देते हैं, दैट मीन लार्जेस्ट। यहाँ ऑलरेडी ही है तो छोड़ दीजिएगा, खाली ER और EST हम ऐड करते हैं। सो कंपैरेटिव बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ER, एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ EST। एंड आफ्टर दैट देयर आर सो मेनी एडजेक्टिव दैट वी मेक बाय एडिंग द मोर एंड मोस्ट। कहीं कहीं होता है, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव में लिखा है ब्यूटीफुल, क्या लिखा है? ब्यूटीफुल। अब जो ब्यूटीफुल हम बनाएंगे वो ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट नहीं बनेगा, दिस इज़ रॉन्ग। सो वी ऐड मोर एंड मोस्ट। फॉर कंपैरेटिव डिग्री वी यूज़ मोर, एंड फॉर सुपरलेटिव डिग्री वी यूज़ मोस्ट। ओके, सो क्या हो जाएगा? यस, जैसे मैंने कहा ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। सो दीज आर द 2 पैटर्न दैट वी यूज़ टू मेक positive, comparative and superlative degree. So now there is any confusion in these degrees, so everyone draw this picture very carefully and in neat and clean way. So now this is enough for today. Tomorrow I will continue to the book work, okay, and in book I will explain you what is degree of comparison. That is clear to all of you? Okay, thank you for watching the video. Thank you and have a nice day.